Hello students. Today I am going to discuss about the last video of uh, P block elements, and this video is about group 18 elements. And group 18 elements is the last group of P block elements. Now the introduction of P block group 18 elements. Group 18 elements consist of 6 elements: हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. तो इस ग्रुप में ये 6 एलिमेंट्स हैं एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर गैसेस एंड दे आर केमिकली अनरिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. जितने भी ये एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स. Group 18 elements are known as noble gases because their valence shell orbitals are completely filled and therefore react with a few elements only under certain conditions. As you know very well that the valence shell orbitals or the outermost shell is completely filled, octet is completed, therefore they do not need any extra electron for the stability. Therefore these elements do not react, or they react with a few elements under specific conditions. Now let us discuss about atomic and physical properties. So first of all, electronic configuration. As you know very well that all noble gases have general electronic configuration, that is ns2 np6. So you can see that s orbital has 2 electrons and p has 6 electrons which are completely filled. So 8 electrons are filled in their outermost shell. It means octet is completed. Only a helium has 2 electrons because its electronic configuration is 1s2, so s orbital is completely filled. That's why helium is also non-reactive element. अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी की. आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल. तो सबसे बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं. So due to stable electronic configuration, these elements have very high ionization enthalpy. तो क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे. यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है एटम में से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. देयरफॉर दीज एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी. लेकिन ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन साइज. तो न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एटॉमिक साइज बढ़ने पर कम होता जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस. Now atomic radii, as you know very well that down the group atomic radii decreases with increase in atomic number. Electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्चुअली वो इंथैल्पी या एनर्जी है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. Now because noble gases have stable electronic configuration and these elements do not need any extra electron, therefore they have very large positive value of electron gain enthalpy. उन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है. Now let us discuss about physical properties of noble gases. We know very well that these elements, noble gases, do not combine with any other element because of completion of their octet. Therefore all noble gases are monoatomic. एक single atom होता है. आप Xe2 या Rn2 इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे नोबल गैसेस का. सो दे आर मोनोएटॉमिक. They are colorless, odorless and tasteless. They are sparingly soluble in water. पानी में बहुत कम डिज़ोल्व होती हैं. They have very low melting and boiling points. ये देखिए, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोबल गैसेस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज दे आर मोनोएटॉमिक. इनका किसी दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है.
So they have no interatomic forces except weak dispersion forces, and therefore they are liquefied at very low temperature. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो पॉइंट है, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट नोबल गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं ये एलिमेंट्स, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत थोड़े से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं. अब इसमें देखिए, कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन आर फीवर. बहुत कम कंपाउंड्स मिलते हैं क्रिप्टॉन के. कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बिकॉज रेडॉन इज़ रेडियो एक्टिव. तो ये अक्सर पूछा गया है एग्ज़ाम में, दैट रेडॉन, वाई रेडॉन हैज़ हैव नॉट बीन आइसोलेटेड. सो बिकॉज, क्यों आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन को? क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड इट हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड. नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नॉन. तो ऑर्गन, हीलियम एंड नियॉन के कोई कंपाउंड आज तक मिले नहीं हैं. अब जीनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कुछ कंपाउंड्स हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये फ्लोरीन के साथ है, तो इसलिए इन कंपाउंड्स को जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स कहा गया है. जीनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स. 3 कंपाउंड बनाता है जीनॉन फ्लोरीन के साथ: XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड, XeF4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड. बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स, मीन्स जीनॉन और फ्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे. तो सबसे पहले देखिए, यदि हम जीनॉन को एक्सेस में लेते हैं तो हमें मिलता है XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड. यदि आप जीनॉन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में लेते हैं तो आपको मिलता है XeF4 टेट्राफ्लोराइड. और यदि हम जीनॉन और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में लेते हैं तो हमें XeF6 यानी कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलता है. तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इनकी. अब जीनॉन हेक्साफ्लोराइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरएक्शन ऑफ जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड O2F2 एट 143 केल्विन. तो ये रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है कि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड O2F2 के रिएक्शन से जीनॉन हेक्साफ्लोराइड किस तरह से बनेगा. नाउ चिल्ड्रन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. जीनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर. तो ये वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है टू गिव जीनॉन HF एंड ऑक्सीजन. आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि जीनॉन फ्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देगा. जीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroions. ये रिएक्शन है. XeF2 reacts with PF5 and gives cation and anion. Similarly, XeF4 tetrafluoride reacts with SbF5 to give cation and anion. Now another compounds of xenon is with oxygen known as xenon oxygen compounds. ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा xenon के फ्लोराइड्स का 2 तरीके से. वन इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. So complete hydrolysis of xenon fluoride XeF4 and XeF6 with water gives XeO3 xenon trioxide. So xenon tetrafluoride water हाइड्रोलिसिस के लिए, और आपको मिलता है XeO3 and HF along with ऑक्सीजन एंड xenon. while with xenon hexafluoride हाइड्रोलिसिस से आपको 2 कंपाउंड मिलेंगे, xenon trichloride and हाइड्रोजन फ्लोराइड. वहीं पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 xenon हेक्साफ्लोराइड, ये आपको देते हैं XeF4 एंड XeO2F2. तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन xenon कंपाउंड्स. तो स्ट्रक्चर में आप देखें, ये कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर है. जैसे पहला आप देखें XeF2. तो XeF2 इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है
कि Xc सेंटर में है और F2 जिनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है और बाकी बच गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम रिपल्शन या एक पॉसिबिलिटी है वो इसी तरह की है कि वो ट्रायंगल बना लें। तो जिनॉन डाइफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब दूसरा हम देखें XeF4। तो अगेन आपको बता दें कि जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली है और इनका जो एडजस्टमेंट है वो स्क्वायर प्लेनर है। बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनॉन के। सो 1 पेयर इज अबव द प्लेन एंड 1 पेयर इज बिलो द प्लेन। स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ XeF6। तो जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बना दी है 6 फ्लोरीन के साथ। बच गया एक लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर आपको ये दिखाई दे रहा है और जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं XeOF4। फिर से हम देखें कि जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करी है। 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ हुई है थ्रू डबल बॉन्ड और बच गए 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है। तो ये जो शेप है दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। यदि 2 लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर प्लेनर, 1 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट स्ट्रक्चर हम देखें XeO3। तो जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन्स ने डबल बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में हैं। तो इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है जिनॉन ट्राइऑक्साइड का। तो जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Now children, let us move to the last slide of this chapter. It is about the uses of noble gases. तो noble gases के या inert gases के बहुत यूनिक applications हैं। जैसे हम helium का देखें, so helium is used in filling balloons because it is non-inflammable and light gas. ये जलती नहीं है और बहुत हल्की होती हैं, इसलिए इन्हें बैलून में भरा जाता है। Now oxygen helium mixture is used in treatment of asthma. Third point, it is very very important, mixture of helium and oxygen used in diving apparatus. पानी के अंदर जाने के लिए हीलियम एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज इट डज नॉट कॉज पेन ड्यू टू वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड। हीलियम की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसकी वजह से बॉडी में पेन नहीं होता। Now neon is used for filling sodium vapor lamp. Argon is used as a carrier gas in gas chromatography. Krypton का बहुत limited use है. It is used in light bulbs designed for a special purpose. And radon is used, ये एक radioactive element है radon, therefore it is used in radioactive research. So dear children, this is all about group 18 elements and about p block elements.